بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ صدق اللہ العظیم۔ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے۔ گرامی قدر حضرات اور برادران اسلام اور معزز سامعین کرام، ماشاءاللہ اس ادارے کا یہ دوسرا تیسرا غالباً اجلاس ہے۔ اب سے کچھ ہی دن پہلے یہ ادارہ قائم ہوا اور قائم ہوتے ہوتے ماشاءاللہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوا۔ یہ گاؤں بھی ماشاءاللہ بڑی حیثیت کا اور ہمارے بہت بڑے بزرگوں اور دینی خدمت کرنے والوں کا گاؤں رہا۔ کبھی یہاں ہمارے ماسٹر مقصود صاحب بھی تھے، ماسٹر مقصود صاحب تھے ماشاءاللہ، ان کا گھرانہ بھی دینی تھا، علمی تھا اور دنیاوی تعلیم کے اندر بھی آگے آگے رہتے۔ غالباً ان کے بچے بھی شمیم اور حدیث، وہ بھی کیا ہے، دینی اور دنیاوی تعلیم میں انہوں نے حصہ لیا۔ یہی وہ گاؤں ہے کہ کبھی بہت سے گاؤں کے اسکول یہاں پر امتحان دینے کے لیے آتے تھے۔ بورڈ کا امتحان ہوتا تھا، درجہ 5 جس کو کہتے ہیں، کक्षा 5۔ یہاں قرب و جوار کے 20-25 اسکول، یہیں پر ان کا امتحان ہوتا تھا۔ کبھی میں نے بھی یہاں امتحان دیا 5ویں کا، اور پھر لگاتار جو عین العلوم کوڑی کھیڑے سے بچے آتے تھے، کक्षा 5 کے بچے یہاں کالج میں امتحان دیتے تھے، تو کئی سال تک میں ان کے ساتھ آیا اور ماسٹر مقصود صاحب کے یہاں قیام رہتا تھا۔ ایک حافظ عبدالوحید صاحب بھی تھے جو کوڑی کھیڑے میں پڑھتے تھے، ان کے یہاں بھی کئی دفعہ طلبہ نے آ کر قیام کیا، اور یہاں جب امتحان ہوتا تھا تو بہت اچھا ماحول ہوتا تھا۔ کئی اسکول اور مدرسے یہاں آیا کرتے تھے، تو ان میں ماشاءاللہ جب مقابلہ ہوتا تھا تو آپ کا یہ عین العلوم کوڑی کھیڑا فرسٹ نمبر پر رہتا تھا۔ دیکھو یہ اللہ کی دین کی بات ہوتی ہے کہ وہاں سب تعلیم ہوتی ہیں، قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، دینی تعلیم ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہوتی تھی، تو اس میں وہاں کے بچے فرسٹ رہتے تھے۔ حافظ عبدالوحید صاحب تھے، بہت علاقے میں یہاں بہت لوگ ان کو جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ تو ان گاؤں میں پیدل پھرتے رہتے تھے، کبھی سواری کا نظم نہیں تھا، سائیکلیں نہیں تھی، موٹر سائیکل نہیں تھی، یہ کاریں نظر نہیں آتی تھی۔ اب تو ماشاءاللہ گھر گھر کاریں ہیں، گھر گھر موٹر سائیکل ہے، اور سائیکلیں تو اب رکھنے ہی لوگوں نے چھوڑ دی، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اس گاؤں میں
हाफिज लियाकत अली ने यह मदरसा कायम किया। माशाअल्लाह ये कौम के ऊपर बड़ा एहसान है, गांव वालों के ऊपर एक एहसान है कि गांव वाले इस तरफ तवज्जो फरमाएं और इस इदारे को आला तालीमात की तरफ ले जाएं, अपने खास तौर पर अपने बच्चों को भेजें। इसलिए कि आजकल अभी मौलाना फरमा रहे थे हमारे मौलाना मसरूर हैदर साहब कि हमारी दीनी तालीम का फुकदान, और वाकईतन ये सही है कि हम जब नजर डालते हैं तो 0/0 नजर आते हैं, और अब रोज बरोज ये सिलसिला खत्म होता चला जा रहा है, देखने में यही आ रहा है। इसलिए हम सबों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। माशाअल्लाह हमारे हाफिज लियाकत अली साहब आगे बढ़े तो हम इनका हाथ बटाएं और इनको दुआएं दें। आजकल दुआओं की सबसे ज्यादा जरूरत, इसलिए इनको दुआएं भी दें और इनका हाथ बटाएं, आगे बढ़ाएं, शुक्रिया अदा करें। अल्लाह तबारक व ताला इनसे ये काम ले रहा है और यहाँ पर ये दीनी इदारा कायम हो गया है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इससे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हकीकी माना में मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। मैंने अभी आपके सामने 2-3 आयतें पढ़ी और इन आयात का मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी खुशनुमा तौर पर गुजारें, हम अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारें, तो कल हमारे लिए आखिरत में जन्नत में जाना आसान हो जाए। इसलिए कि मुसलमान यहाँ आया है, अल्लाह के नबी की उम्मत में हम लोग हैं, तो सबसे बड़ी चीज यही है कि हम आखिरत की फिक्र करें। ये दारुल अमल है, वो दारुल जज़ा। यहाँ हमें काम करना है और वहां जाकर इसकी जज़ा हमें हासिल करनी है और हमें इसकी जज़ा पानी है। देखो आखिरत के लिए दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। हमें यहाँ खेती करनी है, वो किसी भी नौइयत से हो। जिस तरह हम अपने घर के कारोबार में लगे रहते हैं और इस घर के कारोबार को हम अच्छे से अच्छा बनाते हैं, इसी तरह हमें आखिरत की फिक्र होनी चाहिए कि हमारी आखिरत भी अच्छी से अच्छी बने। एक दूसरे से मुकाबला करें, जिस तरह हम दुनिया में मुकाबला करते हैं। मैं 2 मंजिला मकान बनाऊंगा तो दूसरा कहता है 3 मंजिला बनाऊंगा, चौथा कहता है मैं 4 मंजिला बनाऊंगा। तो इसी तरीके से हमें दीन में भी तरक्की करनी चाहिए। जहां हम मादियत के ऊपर इतनी मुसीबतें उठाते हैं, इतनी परेशानियां उठाते हैं, जो कुछ भी हो हम कर डालते हैं, तो इसी तरह आखिरत की भी फिक्र होनी चाहिए, उसकी भी हमें तैयारी करनी चाहिए। दुनिया से ज्यादा आखिरत की तैयारी होनी चाहिए। इसीलिए कहा वअम्मल लज़ीना सुइदू फफिल जन्नह, जो लोग नेक बख्त होंगे, सआदतमंद होंगे, वो जन्नत में जाएंगे, और जो लोग बदबख्त होंगे, शकी होंगे, वो जहन्नम में जाएंगे। इसलिए कहा कि आदमी सोचे मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। नजर सूए दुनिया, कदम सूए मरकब। हमारी नजर दुनिया की तरफ रहती है, हालांकि ये कदम तो हमारे जो कदम हैं ये कब्र की तरफ जा रहे हैं। मगर हम कहाँ, दुनिया ही की तरफ। आदमी की उम्र होती जा रही है, 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, मगर नजर दुनिया की तरफ है। हालांकि हमें आखिरत की तरफ भी तो नजर रखनी चाहिए। जब हमारी नजर आखिरत की तरफ होगी तो हम आखिरत वाले काम करेंगे, तो हमें सईद और सआदतमंद कहा जाएगा। जन्नत में वही लोग जाएंगे जो सआदतमंद होंगे। अब मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि सआदतमंद आदमी कैसे बनेगा, सईद आदमी कैसे बनेगा, नेक बख्त आदमी कैसे बनेगा। देखो बहुत से हजरात हैं कि वो नाम के भी सईद होते हैं, काम के भी सईद होते हैं, और उनका बातिन भी सईद होता है और जाहिर भी सईद होता है। हर तरह से वो सआदतमंद है,
तो उनके तो जन्नत में जाने का कोई शुबा ही नहीं। जैसे हमारे हजरत कारी सईद साहब का यहाँ नाम लिखा है कि मुस्तजाबुद्दावात हजरत कारी सईद अहमद साहब इस मदरसे के सदर भी हैं और इसके सरपरस्त भी हैं, इसके बानी भी हैं। देखो उनकी सआदत मंदी की ही से ये इदारा आगे को बढ़ रहा। सआदत बड़ी चीज, नेक बख्ती बड़ी चीज है। नेक बख्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। हजरात उलमा ने और हमारे बुजुर्गों ने और बड़ों ने ये कहा है कि सआदत मंद बनने के लिए 4 चीजों पर अमल करना हो। नंबर 1 तहारत, नंबर 2 इनाबत, नंबर 3 समाहत, नंबर 4 सदाकत। उसके बाद सआदत, यानी फिर आदमी नेक वक्त बन जाएगा, फिर जन्नत में जाने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो इन 4 चीजों की तरफ मैं आपके सामने कुछ इशारात करता हूं और ये 4 चीजें मैं आपको बतलाना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको सआदतमंद बनाए, हम सबको नेक वक्त बनाए। यहाँ मेरी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, वो भी सुने। सआदतमंदी की सबको जरूरत है, नेक बख्ती की सबको जरूरत है, अच्छा बनने की सबको जरूरत है। चुनाचे उलमा ने लिखा कि तहारत, आदमी पाकीज़ा रहे, साफ सुथरा रहे। अत्तहूर शत्रुल ईमान, ये पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। आजकल बहुत से आबाद जाहिरी टीप टाप और जाहिरी अपने कपड़े तो पाक साफ कर लेते हैं, मगर बातिन खराब रहता है। जाहिर को भी संवारने की जरूरत है और बातिन को भी संवारने की जरूरत है। जाहिर का भी बातिन पर असर पड़ता है। ये नहीं कि हम जैसा चाहा लिबास पहन लिया, जैसा चाहा पहन लिया, जैसे चाहे जूते पहन लिए, जिस तरह चाहा जिंदगी गुजार ली, नहीं, बल्कि जाहिर का भी असर पड़ा करता है। जैसे हमारे उलमा, हमारे सुलहा, वो जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें उस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। चुनाचे सबसे पहली चीज तहारत है कि आदमी पाकीज़ा रहे, पाक साफ रहे। इस पाकी और सफाई का भी असर पड़ता है। जब आदमी पाक साफ रहेगा तो यूं कहते हैं, अगर वो क्या है, उसका खात्मा हो रहा है तो ईमान पर खात्मा होगा। हजरात उलमा ने लिखा, कोई आदमी बावुजू है और बावुजू रहता है, तो अगर उसकी कहीं मौत आ गई तो वो ईमान की हालत में हो। कितनी बड़ी बात है। इसलिए हर आदमी कोशिश करे कि मैं बावुजू रहूं, मेरा हर वक्त वुजू रहे। हम रात को सो रहे हैं, लेट रहे हैं, तब भी वुजू करके सोएं, ताकि रात में न मालूम कब क्या हादसा पेश आ जाए, तो बावुजू आदमी रहे, उसका भी सवाब मिलता है। आम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बावुजू रहते थे, इतने पाक साफ रहते थे। एक दफा आप पेशाब करके फारिग हुए और बाहर आए। बाहर आकर आपने एक मिट्टी का ढेला उठाया और तयम्मुम करने लगे। एक सहाबी ने कहा, है अल्लाह के रसूल, सामने पानी मौजूद है, करीब में पानी मौजूद है, आप वुजू फरमा ले, तयम्मुम क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया कि वो पानी वहां है, वहां तक ना मालूम मैं जा पहुंचू ना जा पहुंचू, मैं वहां तक जाऊं ना जाऊं, उससे पहले ही सांस रहे ना रहे, उससे पहले ही मौत आ जाए तो क्या पता है किसी को। इसलिए मैं तो अभी तयम्मुम कर रहा हूं। तयम्मुम करके भी आदमी पाक साफ हो जाता है। बावुजू का हुक्म है कि वो भी क्या है, बावुजू हो गया। तो अल्लाह के रसूल इतनी भी देर मुनासिब नहीं समझते थे बेवुजू रहना, कि यहां से वहां चलो थोड़ी बहुत दूर हो गए, 1 फरलांग 2 फरलांग पानी था, मगर वहां तक भी बेवुजू जाना पसंद ना किया, बल्कि मिट्टी से तयम्मुम कर लिया। तो खुलासा ये है कि पाकीज़गी का खूब ध्यान रखना चाहिए।
पाकीज़ा आदमी को अल्लाह पसंद फरमाते हैं, और पाकीज़गी का फिर दीन पर असर पड़ता। तो एक तो है तहारत, कि आदमी पाक रहने की कोशिश करे। दूसरी चीज है इनाबत। इनाबत कहते हैं रुजू करने को, लौटने को, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने को, तोबा करने को, कि आदमी से गुनाह हो गया तो तोबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देते हैं। बड़े बड़े गुनाह अल्लाह माफ करता है, दरख्तों के पत्तों के बराबर गुनाह हो, रेत के जर्रात के बराबर गुनाह हो, पहाड़ों के बराबर गुनाह हो। जब आदमी अल्लाह से मांगता है, तौबा तिल्ला करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है। चुनाचे तौबा करने के लिए दोस्तों ये बात याद रखनी चाहिए कि जो कुछ हुआ सो हुआ, पीछे जो कुछ हो गया, जो गुनाह हुए। अब मौजूदा वक्त में मैं नादिम हूं, शर्मिंदा हूं। ऐ अल्लाह, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने गुनाह किए हैं। आइंदा के लिए मैं अज़्म बिल जज़्म करता हूं, पुख्ता इरादा करता हूं। ऐ अल्लाह, कभी भी कोई गुनाह नहीं करूंगा। आदमी गुनाह ना छोटा करे ना बड़ा करे। अल्लाह तबारक व तआला बाज़ दफा छोटे गुनाहों पर भी पकड़ कर लेते हैं। इसलिए ये ना सोचे कि ये तो छोटा गुनाह है, इसको तो कर जाओ, बड़ा गुनाह नहीं करेंगे। नहीं, गुनाह तो गुनाह है। हजरत अल्लामा रफीक अहमद साहब भैसानी वाले, जलालाबाद वाले यूं कहा करते थे कि भाई तकसीम क्यों करते हो गुनाहों में, कि ये सवेरा ये कबीरा। गुनाह तो गुनाह है, बस गुनाह को गुनाह समझो। बार दफा अल्लाह तबारक व तआला गुनाह सगीरा पर भी पकड़ फरमा लेते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। अलबत्ता आदमी से गुनाह हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं, और ये कोई बहादुरी की बात भी नहीं। कोई ये कहे मुझसे गुनाह नहीं होता, वो लोग तो चले गए जिनसे गुनाह नहीं होता था। ऐसे लोग भी थे कि बड़े बड़े गुनाह उनसे नहीं हुए। गुल गए, गुलशन गए, फूलों के पत्ते रह गए। जो लोग थे वो चले गए, उल्लू के पट्टे रह गए। अब हम लोग तो क्या है, उल्लू जैसे हैं। वरना एक दफा अमीरुल मोमिनीन शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब रहमहुल्लाह, आप सब हजरात ने उनका नाम सुना होगा। मज़ाहिर उलूम सहारनपुर में बुखारी पढ़ाते थे। 50 साल उन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ाई। एक दफा हजरत मौलाना यूनुस साहब और हजरत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब, ये दोनों के दोनों हजरत मौलाना शाह असदुल्लाह साहब के पास बैठे हुए। शाह असदुल्लाह साहब के ये दोनों खलीफा हैं। हजरत मौलाना शाह असदुल्लाह साहब ने जो मज़ाहिर उलूम के नाज़िम थे, उन्हीं के खादिम कारी गोरा, उनके लड़के आजकल नमाज पढ़ा रहे हैं जामे मस्जिद में, कारी गोरा के, ये उन्हीं के खादिम हैं हजरत मौलाना शाह असदुल्लाह साहब के। हजरत मौलाना शाह असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों आदमियों को यूं कहा कि तुम गवाह रहना, मैं तुम्हें एक बात बतलाता हूं, मगर किसी के सामने जिक्र ना करना। इन्होंने कहा बतलाओ। तो हजरत शाह असदुल्लाह साहब ने यह कहा कि 40 साल की उम्र तक, आज मुझे होश संभाले हुए 40 साल हो गए, पहले जो उम्र होगी, मैंने 40 साल तक कोई गुनाह कबीरा नहीं किया। इन्होंने कहा हम तो बताएंगे। हजरत शेख यूनुस साहब ने, मुफ्ती मुजफ्फर ने हमको लोगों को बताएंगे कि नहीं, मेरे मरने के बाद बता देना, अभी ना बतलाना। ये वही हजरत मौलाना शाह असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। 35 साल तक इनकी नमाज तकबीर उला से हुई। मस्जिद कुलसूम जो मज़ाहिर उलूम में है, वहां नमाज पढ़ा करते थे। और इनका आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त में इनके मुंह में चमची से खाना दिया जाता था। चारपाई पर लेटे रहते थे, मगर जब नमाज का वक्त होता तो चारपाई को उठाकर मस्जिद में ले जाया जाता, इमाम के पीछे रख देते, वहां पर हजरत बैठ जाते
پیچھے تکیہ لگایا جاتا، جب مکبر تکبیر کہتا اللہ اکبر تو فوراً کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے طاقت آ جایا کرتی تھی، اور جب امام نے سلام پھیرا تو فوراً پھر طاقت ختم ہو گئی، پھر آپ کو چارپائی کے اوپر لٹاتے اور کمرے میں لے آتے۔ اس طرح کئی سال تک رہا، کئی سال ایسی حالت میں گزارے، مگر تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں چھوٹی۔ تو یہ حضرات تھے، ان حضرات سے کبیرہ گناہ نہیں ہوا، مگر صغیرہ گناہ کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ 20 سال تک تکبیر اولیٰ سے نماز فوت نہیں ہوئی۔ تکبیر اولیٰ جب امام کہتا ہے اللہ اکبر، وہ تکبیر اولیٰ 20 سال تک برابر نماز پڑھتے رہے تکبیر اولیٰ سے۔ دارالعلوم دیوبند کی ایک دفعہ مجلس شورا ہو رہی تھی، وہاں حضرت مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی موجود تھے، یہ وہاں کے سرپرست تھے دارالعلوم دیوبند کے۔ وہاں شورا میں دیر ہو گئی، جب دیر ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے آئے، وہاں امام نے تکبیر اولیٰ کہہ دی اور وہاں گویا کہ نماز کھڑی ہو گئی۔ تو نماز کے بعد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی آنسو بہا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے حضرت، کیا ہو گیا؟ کہا کہ آج تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی 20 سال کے بعد، اس کا غم ہو رہا ہے۔ تو ایسے ایسے لوگ تھے، ان لوگوں کی برکت سے دارالعلوم دیوبند، یہ مظاہر العلوم سہارنپور، اور یہ آپ کا کاشف العلوم، یہ عین العلوم کوڑی کھیڑا، یہ ایسے ایسے مدرسے جو قائم ہوئے، ان لوگوں نے ان کو قائم کیا، ان کا فیض یہاں آیا۔ تو اس لیے ہم اپنے بڑوں کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کیسے پاکیزہ رہتے تھے، کیسی انابت، کیسا رجوع، کیسی توبہ، ان کی دعاؤں میں وہ توبہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لوگ پسندیدہ۔ تو دوسری چیز، نیک بخت بننے کے لیے، سعادت مند بننے کے لیے گویا کہ توبہ ہے۔ تو ہم توبہ کریں، راتوں میں اٹھ کر آدمی توبہ کرے، دن میں توبہ کرے، چلتا پھرتا اللہ کی طرف متوجہ رہے، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ تیسری چیز بیان کی جاتی ہے سماحت۔ سماحت کہتے ہیں سخاوت کو، خوش اخلاقی کو، کہ آدمی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے، اپنے بھائیوں سے ملے، خوشی خوشی ملے، صدقہ و خیرات کرے، کوئی ضرورت ایک دوسرے کی ہو اسے پورا کرے، اسے سماحت کہتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سعادت مند بن جائیں، ہم نیک بخت بن جائیں، تو ہمیں یہ تیسری چیز سماحت بھی اپنانا ہوگا، سخاوت کا مادہ بھی پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ کو یہ چیز بھی بہت پسند ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مہمان آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان کو اٹھایا، بٹھایا۔ اب وہ مہمان جو تھا اسے کھانے کی ضرورت تھی، اللہ کے رسول نے پہچان لیا کہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر آدمی بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کچھ کھانے پینے کو ہے کہ نہیں۔ حضرت عائشہ کے یہاں گیا، جانے والا دوسرے ازواج مطہرات کے یہاں گیا، کہیں پر کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کہا بھائی ایک مہمان ہے، کوئی آدمی اس مہمان کو لے جائے اور اس مہمان کو اپنے یہاں کھانا کھلائے، ان کی ضیافت کرے، ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ہے کوئی آدمی ایسا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ اس مہمان کو لے کر گھر گئے، مہمان کو بٹھا دیا، اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، مہمان آیا ہے، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میں ساتھ لے کر آیا ہوں، اگر کچھ کھانے پینے کے لیے ہو تو حاضر کرو۔ بیوی نے کہا کہ کچھ تھوڑے بہت روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اس لیے ہیں کہ بچے رات کو اٹھیں گے، ان بچوں کو کھلا دوں گی،
या अभी बच्चों ने नहीं खाया है खाना, उन्हें थोड़ा बहुत खिलाकर सुला दूंगी। हजरत अबू तलहा अंसारी ने यह कहा कि कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे तो रह जाएंगे, कोई बात नहीं, बच्चों को वैसे ही सुला दो, इन्हें बहला बहला कर सुला दो, ये तो सो जाएंगे, मगर मेहमान आया है, मेहमान की देखभाल करनी। अबू तलहा अंसारी ने अपनी बीवी से कहा कि देखो हम एक तरकीब इख्तियार करते हैं, हमारे पास खाना नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, चलो बच्चों को तो हम बहलाकर सुला देते हैं, मेहमान के सामने हम खाना रखेंगे। और उस वक्त दौर ऐसा था, अब भी तरीका यही है कि अपने मेहमान के साथ भी बैठकर खाए। उसके पास बैठकर जब आदमी खाता है, मेहमान को खुशी होती है, इत्मीनान होता है। तो हजरत अबू तलहा अंसारी ने कहा अपनी बीवी से कि तुम भी बैठ जाना, मैं भी बैठ जाऊंगा, मेहमान खाना खाएगा तो ऐसा करना कि चिराग जो जल रहा है आहिस्ता से जाकर चिराग को बुझा देना और ये कहना कि चिराग की बत्ती पता नहीं क्यों खराब हो रही, इस चिराग की बत्ती को मैं सही करना चाहती हूं, तो बजाय ऊपर करने के नीचे कर देना, खुद ब खुद चिराग बंद हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। हमारे पास रोटी नहीं है, बहुत थोड़ी सी है, मेहमान भी नहीं छक पाएगा इन रोटियों में, इसलिए मैं और तू यानी मियाँ बीवी हम दोनों अपना हाथ पीछे हटा लेंगे और मेहमान खाता रहेगा और चिराग बुझ जाएगा। बहरहाल बीवी ने ऐसा ही किया कि आहिस्ता से उठी और कहा कि चिराग को देखती हूँ, ये चिराग में क्या हो रहा है, पहले ये बल्ब तो नहीं थे, ये बिजलियां या कुमकुमे नहीं थे, बल्कि चिराग जलता, मिट्टी का तेल डालते थे, चिराग जलता था। सब जानते हैं उसमें एक बत्ती होती थी, उसे नीचे खींच दो तो बंद हो जाता था। तो इनकी बीवी ने ऐसा ही किया, उठकर गई और चिराग को गोया के धुल कर दिया, नीचे बत्ती कर दी और कह दिया पता नहीं चिराग को क्या हो गया, ये चिराग बुझ गया। बहरहाल मेहमान खाना खाता रहा और ये दोनों के दोनों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, ये खामोशी से बैठे रहे, मेहमान खाना खा के फारिग हो गया। सुबह होती है, सुबह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू तलहा अंसारी पहुंचे। अल्लाह के रसूल को मालूम हो गया, अल्लाह ने बता दिया बजरिया वही। तो अल्लाह के रसूल ने अबू तलहा अंसारी से कहा, ऐ अबू तलहा, रात जो तुम लोगों ने, तूने, तेरी बीवी ने एक तरकीब इख्तियार की थी और मेहमान को खाना खिलाया था, मेहमान तो शिकन शेर हो गए और तुम भूखे सो गए। अल्लाह को तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद आई और अल्लाह को हंसी आ गई। देखो अल्लाह का हंसना कोई मामूली चीज है भाई, आदमी कब हंसता है, जब खुश होता है। तो अल्लाह खुश हो गए इस मेहमान की, जो मेहमान नवाजी की बीवी ने और हजरत अबू तलहा अंसारी, इस इनके फेल के ऊपर अल्लाह खुश हो गए, अल्लाह को हंसी आ गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बतलाई हजरत अबू तलहा अंसारी। तो खुलासा ये है दोस्तों कि अगर हमारे अंदर समाहत हो, सखावत का मादा हो, सदका करने का मादा हो, खुश अखलाकी का मादा हो, तो ये भी हमें कहाँ जन्नत में लेकर जाएगी। तो तीसरी चीज समाहत, तहारत, इनाबत, समाहत, यानी सखावत हमारे अंदर आ जाए, खुश खुल्के हमारे अंदर आ जाए, हमारा अच्छा मिजाज बन जाए, हम बेहतर इंसान बन जाएं, ये गोया के समाहत कहलाता। इसके बाद में एक है सदाकत। सदाकत और अदालत कहो, सदाकत कहो, अदालत कहो। सदाकत आदमी के अंदर होनी चाहिए। जब सदाकत होगी, सच्चाई होगी, ये आदमी नेक बख्त बन जाएगा। नेक बख्त बन जाएगा तो जन्नती बन जाएगा। तो चौथी चीज है साथ, वो क्या है? सदाकत। हमारे अंदर सदाकत भी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। कुरान तो ये कहता है कि तुम सच बोलो, गवाही दो, गवाही भी सच्ची दो।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल-क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन। कोई भी हो, अगर गवाही देने का मामला आ गया, अपने नफ्स के खिलाफ पढ़ने दो, मगर गवाही सच्ची दो, बात सच्ची कहो। वालिदैन के खिलाफ पढ़ने दो, वालिद का भी ख्याल नहीं किया जाएगा, बात सच्ची कही जाए। हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों के खिलाफ पढ़ रही है गवाही, पढ़ने दो, बात सच्ची कहो, गवाही सच्ची दो। जब गवाही सच्ची दी जाएगी, बात सच्ची कही जाएगी, सदाकत हमारे अंदर आएगी, तो सआदत और सआदतमंद लोगों में हमारा नाम रखा जाए, अल्लाह सआदतमंदों में लिख देगा। तो चौथी चीज सदाकत है दोस्त। ऐसी सदाकत होनी चाहिए जैसी सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने थी। ऐसी सदाकत हमारे अंदर, अल्लाह हमें ऐसा सिद्दीक बना दे, ऐसा सदाकत वाला बना दे जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत मैं आपको बतलाऊं, फिर बात खत्म हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़िया औरत आई। देखो उस बुढ़िया का जज्बा, उस बुढ़िया का जोश, उस बुढ़िया का ईमान। वो बुढ़िया औरत अल्लाह के नबी के पास आई और आकर ये कहा, है अल्लाह के नबी, मेरा एक लड़का है जिसका नाम मालिक इब्ने सनान है, वो रोजाना तैयारी कर रहा है, वर्जिश कर रहा है, तलवार से वर्जिश करता है और ये कहता है ये तलवार होगी और नबी का हलक होगा, नबी का गला होगा, मैं नबी को कत्ल करूंगा। मेरा बेटा यूं कहता है, रोजाना तैयारी कर रहा, वर्जिश कर रहा, तलवार को कभी दाएं करता है, कभी बाएं करता है, कभी सामने करता है कि इधर से आएंगे यूं मार दूंगा, इधर से आएंगे यूं मार दूंगा, सामने से आएंगे ऐसे कत्ल कर दूंगा। वो तैयारी कर रहा है, वर्जिश कर रहा। बुढ़िया ने अल्लाह के नबी से जाकर कहा, है अल्लाह के नबी, आप दुआ कर दीजिए, मेरा बेटा इस्लाम ले आए, मेरा बेटा आपसे मोहब्बत करने वाला हो, मेरी ये तमन्ना। वो आपके कत्ल की तैयारियां कर रहा है, वर्जिश कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की दुआ दी, ऐ अल्लाह, मालिक इब्ने सनान को, इस बुढ़िया के बेटे को हिदायत दे। मालिक इब्ने सनान को हिदायत मिल गई। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी ने दुआ की, उधर से मालिक इब्ने सनान भागे हुए आए, आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पड़ गए और आकर अल्लाह के रसूल से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कलमा पढ़ा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ना था। यूं कहते हैं 2-4 दिन के बाद कहीं अल्लाह के रसूल जिहाद के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। अल्लाह के रसूल जब जिहाद में जा रहे हैं, मालिक इब्ने सनान ने कहा, ये नौजवान था, नई उमंगे थी, नया जोश था, नया जज्बा था, नया ईमान था। इसने कहा, है अल्लाह के रसूल, मैं भी जिहाद में चलूं, मुझे भी साथ लेकर चलो। अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी, चलिए। अब ये नौजवान, नौ मुस्लिम, नया जज्बा रखने वाला अल्लाह के रसूल के साथ चला जाता और जंग में जाकर ये नया सहाबी, नौजवान सहाबी खूब लड़ा, लड़ते लड़ते शहीद हो गए, शहादत का दर्जा पा लिया। अब 1-2 हफ्ते के बाद जब जिहाद से वापस आए, मदीनतुल मुनव्वरा की औरतें जो जिहाद के लिए जाते थे, जब फिर वो वापस आते थे तो मदीने की औरतें उनका इस्तकबाल किया करती थी।
औरतें इस्तिकबाल के लिए निकली कि मुजाहिदीन आ रहे हैं, किसी का बेटा आ रहा है, किसी का शोहर आ रहा है, किसी का भाई आ रहा है, तो इस्तिकबाल कर रही हैं सारी औरतें। वो औरत जो बुढ़िया थी, जिसका बच्चा गया था, वो भी अपने बच्चे के इस्तिकबाल के लिए आई कि मेरा बच्चा नौजवान था और मेरा बच्चा नया नया इस्लाम लाया था, मैं भी आज उसका इस्तिकबाल करूंगी। वो जिहाद से वापस आ रहा। बहरहाल औरतें खड़ी हैं, जिहाद वाले आ रहे हैं, मस्जिद नबवी में आकर जमा हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उस बुढ़िया औरत ने देखा कि अल्लाह के रसूल आए। अल्लाह के रसूल को पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इस मजमे में, इन आने वालों में, इन मुजाहिदीन में मेरा बच्चा नजर नहीं आ रहा है, कहां गया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर सोचा और यूं कहा कि पीछे अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, उनसे पूछना। बहरहाल अल्लाह के नबी चले गए, सहाबा चले गए, फिर और मुजाहिदीन के आ रहे हैं, सहाबा आ रहे हैं। वो बुढ़िया एक दूसरे सहाबी से पूछती है कि मेरा बेटा भी था, वो नजर नहीं आ रहा, कि अभी अभी अल्लाह के रसूल गए हैं, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने यूं कहा है कि पीछे अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक से पूछना। अबू बकर नजर नहीं आ रहे हैं। फिर और कोई सहाबी आए, उनसे पूछा कि मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल आगे गए हैं, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि अबू बकर सिद्दीक पीछे आ रहे हैं, उनसे पूछना। कि ठीक है, अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, उनसे पूछना। बहरहाल आते रहे आते रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। बुढ़िया खड़ी है, इंतजार में खड़ी है, मेरा बेटा आएगा, मैं भी इस्तेकबाल करूंगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए। इस बुढ़िया ने कहा अबू बकर सिद्दीक से, ए अबू बकर सिद्दीक, मेरा बेटा कहाँ है? सब लोग आ गए, सारे मुजाहिदीन आ गए, मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं उस औरत का चेहरा पढ़ रहा था, वो परेशान थी, बेचैन और बेकरार थी। मैं सोचने लगा इसे क्या जवाब दूं। अगर ये कहूं तेरा बेटा मर गया तो ये खुद मर जाएगी, इसकी ऐसी हालत हो रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचते रहे, क्या कहूं क्या ना कहूं। बेटा मर चुका था, शहादत पा चुका था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बुढ़िया से ये कहा कि अल्लाह के रसूल, वो बुढ़िया से कहा अल्लाह के रसूल गए हैं, वो क्या कहकर गए हैं? बुढ़िया ने कहा कि वो तो ये कहकर गए हैं पीछे अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, उनसे पूछना। अब मैं आपसे पूछ रही हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ठहरे रहे कुछ देर, कहा उस बुढ़िया से कि सब्र करो, तेरा बेटा पीछे आ रहा। उन्होंने भी यही कह दिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पल्ला पसार लिया, दुआएं मांगनी शुरू कर दी, आंखों से आंसू जारी हो गए। हे अल्लाह, तू तो बड़ा कादिर है, कुदरत वाला है। तो हजरत ईसा की जबान पर, हजरत ईसा के मांगने पर मुर्दों को जिंदा कर देता। हजरत ईसा ने कहा इसको जिंदा कर दो, वो जिंदा हो गया। मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे हजरत ईसा की जबान पर। ए अल्लाह, कल मैं कयामत में, मैदान महशर में जब नबी मुझे देखेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा नबी को? नबी के सामने चेहरा कैसे करूंगा? मैं झूठ बोल गया हूं, मैंने कह दिया है कि तेरा बेटा पीछे आ रहा है, हालांकि बेटा मर चुका है। ए अल्लाह, बेटा तो मर गया है, बेटा खत्म हो गया है। ए अल्लाह,
आप उसे जिंदा कर सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला दुआएं कर रहे, अल्लाह ने दुआ सुन ली और मालिक इब्ने सनान को जिंदा किया, मालिक इब्ने सनान को लिबास पहनाया। मालिक इब्ने सनान थोड़ी देर के बाद चले आ रहे, उस बुढ़िया ने देखा मेरा बेटा आ रहा, खुशी खुशी वो अपने बेटे के साथ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मस्जिद नबवी में वहां बैठ गए जहां जूते निकालते, लोगों ने जूते निकाल रखे हैं, आगे जाकर बैठ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां बैठ गए, रो रहे हैं, क्या होगा, मैं झूठ बोल गया हूं, आज तक जिंदगी में मैं झूठ नहीं बोला। सिद्दीक उसे कहते हैं जो कभी अपनी जिंदगी में झूठ ना बोला। ऐ अल्लाह, मैं आज झूठ बोल गया, कल क्या मुंह दिखाऊंगा नबी को। बहरहाल अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन ली, तो इसे कहते हैं सदाकत। जब अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन ली और वो नौजवान मालिक इब्ने सनान अपनी अम्मा के साथ नबी के पास आकर बैठा, नबी की मजलिस में बैठा, नबी हैरान, नबी परेशान है, नबी को बड़ा ताज्जुब हो रहा है, ये क्या हो गया। मालिक इब्ने सनान तो मर चुके थे, शहादत का दर्जा पा लिया था, ये जिंदा कैसे हो गए, हमारे दरमियान में कैसे आ गए। बड़ा ताज्जुब में है अल्लाह के नबी। हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए मस्जिद नबवी में। हजरत जिब्रील अमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि घबराने की बात नहीं है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ठीक है, मालिक इब्ने सनान मर गया था, मगर अबू बकर सिद्दीक ने दुआ की है, उसकी दुआ पर हमने जिंदा कर। तो ये थे सिद्दीक, ये थी सदाकत, इसे कहते हैं सदाकत। इसी को मैं आपको बतला रहा हूं कि समाहत, सदाकत, तहारत, इनाबत, ये चारों चीजें जब आदमी में आ जाएंगी तो वो सआदतमंद बन जाएगा, सईद बन जाएगा, नेक बख्त बन जाएगा। यही है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, जो गारे हिरा, जो गारे सौर में आपके साथ रहे। अबू बकर सिद्दीक का बड़ा ऊंचा मकाम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब इस दुनिया से रुखसत होने लगे, इस दुनिया से गोया के जाने लगे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी हजरत आयशा को दो वसीयतें की, दो नसीहतें की। ऐ आयशा, मैं तुझे दो वसीयत, दो नसीहत करता हूं। एक वसीयत तो ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने जाकर बिठा देना, वहां जाकर चारपाई रख देना रोजे मुबारका के सामने। अगर रोजे मुबारका का दरवाजा खुल गया तो वहां पर मुझे दफन कर देना, नहीं तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। सब जानते हैं हाजी लोग, उम्रा करने वाले लोग, वही जन्नतुल बकी भी है कि यहां दफन करो या जन्नतुल बकी में दफन कर देना। हजरत आयशा ने कहा बहुत अच्छा। दूसरी वसीयत और नसीहत यह है कि मुझे जो कफन देना वो पुराने कपड़ों में देना, नए कपड़े ना लाना। मेरी दो चादरें रखी हुई हैं, उन्हीं चादरों में कफन दे देना। जैसे आजकल बहुत से हाजी जाते हैं, उम्रे में जाते हैं, वो वहां से आबे ज़मज़म के पानी में अपना ihram भिगो लाते हैं कि भाई मुझे इसमें कफन देना। बात कोई अच्छी बात है, कोई हरज नहीं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मुझे पुरानी चादरों में कफन देना। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आपकी दो वसीयतों में से पहली वसीयत पर तो मैं अमल करूंगी, मगर ये दूसरी वसीयत जो आप फरमा रहे हैं कि पुराने कपड़ों में कफन देना, ये नहीं होगा।
ऐसा नहीं हो सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेटी मैं सही कह रहा हूं, तुम मुझे बैतुल माल में कफन के बहुत कपड़े रखे हैं, चादरें हैं, नए नए कपड़े हैं, तुम उनमें फिर मुझे कफन दोगी? ये नहीं होगा। वो तो यतीमों का माल है जो वहां बैतुल माल में रखा है, तुम फिर यतीमों के माल में मुझे कफन दोगी? चुनाचे ये तन्हा शख्स है, वाहिद शख्स है हजरत अबू बकर सिद्दीक। तारीख शाहिद है कि इनकी पुरानी चादरों में इन्हें कफन दिया, वरना नए नए कपड़ों में कफन दिया जाता। तो बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ये थे सिद्दीक। इनकी सदाकत आपने देखी, दुआ की, एक क्या है, मुर्दा जिंदा हो गए, अल्लाह ने उसको जिंदा कर दिया। तो तहारत, इनादत, समाहत, सदाकत, उसके बाद में नंबर आता है सआदत का। आदमी सआदत पर पहुंच जाएगा, नेक बख्त हो जाएगा, नेक बख्तों को जन्नत में ले जाया जाएगा। वअम्मल्लज़ीना सुइदू फफ़िल जन्ना, वो लोग जो नेक बख्त हैं वो जन्नत में जाएंगे। और नेक बख्ती के लिए मैंने ये 4 चीजें आपको बतला। एक और आयत पढ़ी थी मैंने, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफून। ये चारों काम जब हम करें, तहारत का हो या तौबा तिल्ला का हो या सखावत करने का हो या सदाकत सच बोलने का हो, तो इनमें किसी तरह की कोई तत्फीफ ना की जाए, कोई कमी ना की जाए, नहीं तो अल्लाह का अजाब बहुत सख्त। हर चीज में जिसका जो हक है उस तरीके से उस हक को अदा करो। अल्लाह के जो हुकूक हैं उन हुकूक को अदा करो, बंदों के जो हुकूक हैं उन हुकूक को अदा करो, किसी भी हक में कमी ना करो। बीवी के हुकूक हैं वो पूरे करो, शोहर किसी क्या है, बाप के हुकूक हैं वो पूरे करो, माँ के हुकूक हैं वो पूरे करो, असातिज़ा के हुकूक हैं वो पूरे करो, बड़ों के हुकूक हैं वो पूरे करो। किसी भी हक में कोई कमी ना होनी चाहिए। अगर किसी के हक में कोई कमी हो गई तो वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, उनके लिए वैल का अज़ाब है, बहुत सख्त अज़ाब। वैल जहन्नम में एक वादी, या जहन्नम में बहुत गहरा गड्ढा है, उस गड्ढे में डाले जाएंगे वो लोग जो हक में कमी करते हैं। अब यही मैंने कहा कि तहारत, तहारत, पाकीज़गी, वुज़ू, गुस्ल मुकम्मल तौर पर होना चाहिए। नमाज हम पढ़ते हैं, मुकम्मल नमाज होनी चाहिए। रोजा रखते हैं, मुकम्मल रोजा होना चाहिए, उसमें कोई कतर बेवक ना हो। लेन देन करते हैं किसी से, उसमें कतर बेवक ना हो। किसी से कोई चीज लेते हैं, किसी को कोई चीज देते हैं, पूरा पूरा हक अदा किया जाए। यानी जैसे आजकल क्या है, दुकानदार लोग, ताजिर लोग जब कोई चीज क्या है किसी से लेते हैं तो पूरी लेते हैं, और जब देते हैं तो कम देते हैं, तोल में कमी कर देते हैं, 2 ग्राम 3 ग्राम कम कर दिए, कीमत पूरी ले रहे हैं। तो ये क्या है, बहुत बुरी चीज है। ऐसे लोगों के लिए वह जहन्नम में गड्ढा जो कमी बेशी करते हैं। ना लेने में कमी बेशी करो, ना देने में कमी बेशी करो। आज हम समझ लेते हैं कुछ नहीं, कल मैदान महशर में वो लोग जिनके हुकूक में कमी की गई वो आकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे मेरा खुला हक मारा है, मेरा खुला हक मारा है। तो अल्लाह उन लोगों को लाइन में खड़े कर देंगे जिन्होंने किसी के हुकूक मारे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला वहां एक का हक दिलवाएंगे। जब तक हक नहीं दिया जाएगा, फैसला नहीं किया जाएगा, अगर हुकूक पूरे हो गए, मुकम्मल तौर पर हुकूक अदा हो गए, तो समझो आदमी के लिए कामयाबी है। वरना वहां के बारे में ये आता है, रिवायात में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को खड़ा करेंगे जिन्होंने लोगों के हुकूक मारे, रिश्ते नातों को तोड़ा, कता ताल्लुक की, और जिन्होंने रिश्ते नातों का कोई ख्याल नहीं रखा, तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला पुल सिरात से नहीं गुजरने देंगे, उन्हें बड़े ही खड़ा कर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि तुमने बहुत हुकूक मारे लोगों के,
अब यहाँ अपने अपने हुकूक लो दो, जिसने जिसका जो हक मारा है वो हक देना पड़े किसी तरह भी। अब कहेगा कैसे दूं, कहां से दूं, वो तो दुनिया में जो कुछ हुआ हो गया। अब यहाँ दुनिया चली गई, दुनिया खत्म हो गई, दुनिया की चीजें खत्म हो गई, अब कहां से हक पूरा करें। वहां हक इस तरह पूरा नहीं किया जाएगा। वहां तो हक जो पूरा किया जाएगा वो नेकियों की शक्ल में होगा और बुराइयों की शक्ल में होगा। तो वहां वो आदमी जिसने किसी का हक मारा उसकी नेकियां लेकर उसे दे दी जाएंगी जिसका हक मारा। तो वहां का मामला बहुत खतरनाक। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम सबों को चाहिए कि हम सआदतमंद बने, सईद बने। जैसे मैंने अभी कहा था कि जैसे हमारे कारी सईद अहमद साहब हैं, नाम भी सईद है, सआदतमंद भी हैं, इन चीजों पर अमल भी करते हैं, तहारत का, इनाबत का, समाहत का, सदाकत का ख्याल रखते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को ऊंचे दर्जे पर पहुंचाते हैं, सआदतमंद बना देते हैं। जब आदमी सआदतमंद बन गया उसके लिए जन्नत का फैसला हो जाता है। हक जल्ल मजदुहु व अम्मन वालुहु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें सआदतमंद बनाए। अल्लाह हम सब के लिए खैर के फैसले फरमाए। वो सब कुछ जानता है, हम खैर करें उसको भी जानता है, हम शर करें उसे भी जानता है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। वो जर्रे जर्रे का मालिक है। थोड़ी सी हमने खैर की उसको भी देखता है, हमने थोड़ी सी बुराई की उसको भी देखता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खैर के काम करने की तौफीक अता फरमाए और इन दीनी इदारों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए, उलमा और सुलहा से मोहब्बत अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।